દૂર સુધી ફેલાયું જેના શિક્ષણનું છે તેજ, દૂર સુધી ફેલાયું જેના શિક્ષણનું છે તેજ, અમારું સ્વાભિમાન અમારી અમરોલી કોલેજ, અમારું સ્વાભિમાન અમારી અમરોલી કોલેજ. તાપી તટ પર ઊભું છે આ શિક્ષણનું ઉપવન, એકવાર આવો તો મહેકે આખું આજીવન. તાપી તટ પર ઊભું છે આ શિક્ષણનું ઉપવન, એકવાર આવો તો મહેકે આખું આજીવન. જીવનના આનંદથી અહીંયા કોઈ નથી પરહેજ, જીવનના આનંદથી અહીંયા કોઈ નથી પરહેજ, અમારું સ્વાભિમાન અમારી અમરોલી કોલેજ, અમારું સ્વાભિમાન અમારી અમરોલી કોલેજ. એક તરફ કુરુક્ષેત્ર ને કર્ણભૂમિ એક બાજુ, બંને વચ્ચે જ્ઞાનનું ફૂલ ખીલે છે તાજું. એક તરફ કુરુક્ષેત્ર ને કર્ણભૂમિ એક બાજુ, બંને વચ્ચે જ્ઞાનનું ફૂલ ખીલે છે તાજું. સૌને હૈયે સ્થાન છે એનું હંમેશા રહેશે જ, સૌને હૈયે સ્થાન છે એનું હંમેશા રહેશે જ, અમારું સ્વાભિમાન અમારી અમરોલી કોલેજ, અમારું સ્વાભિમાન અમારી અમરોલી કોલેજ. મોકળાશ અજવાસ છલકતા વર્ગ અહીં છે, શિક્ષણને સંસ્કાર ભર્યું એક સ્વર્ગ અહીં છે. મોકળાશ અજવાસ છલકતા વર્ગ અહીં છે, શિક્ષણને સંસ્કાર ભર્યું એક સ્વર્ગ અહીં છે. શિસ્ત અને સમજણની જોડી અહીં વર્ષોથી છે જ, શિસ્ત અને સમજણની જોડી અહીં વર્ષોથી છે જ, અમારું સ્વાભિમાન અમારી અમરોલી કોલેજ, અમારું સ્વાભિમાન અમારી અમરોલી કોલેજ. દૂર સુધી ફેલાયું જેના શિક્ષણનું છે તેજ, દૂર સુધી ફેલાયું જેના શિક્ષણનું છે તેજ, અમારું સ્વાભિમાન અમારી અમરોલી કોલેજ, અમારું સ્વાભિમાન અમારી અમરોલી કોલેજ, અમરોલી કોલેજ, અમરોલી કોલેજ. Thank you very much for presenting the college song. Vijay sir, this song represent our college and college activity overall. So moving forward, जिनके दीर्घ दृष्टि से, जिनके प्लानिंग से ये पूरे सेशन चल रहे हैं सर, कि ड्यूरिंग दी लॉकडाउन, जब से मार्च से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है तभी से कॉलेज का ये उद्देश्य रहा है, व्हेन द कॉलेज इज क्लोज्ड, हम ये घर से पूरे सेशन चला रहे थे कि जो जनरल पब्लिक है उनमें कुछ अच्छे विचार, नए विचार, मोटिवेशन हम उनके माइंड में डाल सके. सो ऐसे विचार के प्रणेता हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर के चावड़ा सर से मैं अनुरोध करता हूं कि जितने भी पार्टिसिपेंट हैं और जितने भी हमारे गेस्ट हैं उनको वेलकम स्पीच दें और इवेंट को ब्लेसिंग्स दें. प्रिंसिपल चावड़ा सर. प्रणाम सर. आप अपने आदरणीय एवं श्री विजय भाई कांति सर, जो आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और हमारे अमरोली कॉलेज से ये पूरे 67 वेबिनार तक की जर्नी में पूरे भारत से जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं सभी को अपना प्रणाम. और अमरोली कॉलेज
आप सबके लिए, हमारे सबके लिए भारत देश के जो नई विचारधारा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, बाकी के सभी विचारों में जो ज्यादा से ज्यादा अपने भारत के 135 करोड़ लोगों के पास पहुंचने का नियम है। ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए हम जानते हैं कि श्री विजय जी वो पूरे इस बारे में बहुत से हमसे ज्यादा और पूरे भारत में ये टॉपिक में सबसे ज्यादा जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट है। ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए हमारे अमरोली कॉलेज परिवार और जीवन ज्योति ट्रस्ट परिवार की ओर से सबको प्रणाम और आगे के लिए हमारी टीम को अनुमोदित करता फिर से अभी आप सबका प्रणाम। Thank you very much, Principal Chavda sir. Now I will request the coordinator of this event, Dr. Chirag Sitpuria sir, to introduce our today's eminent speaker, Vijay Kanti sir. Chirag sir. Very good morning, one and all. I, Dr. Chirag Sitpuria, welcome you all to the 27th National Webinar on Strategic Dimension on Andaman and Nicobar. It is our immense pleasure to receive a dynamic personality, Sri Vijay Kanti ji, as an eminent speaker for today's session. Sri Vijay Kanti ji is a senior generalist, Tibetologist. He is a chairman, Center for Himalaya, Asia Studies and Engagement. Sir is veteran journalist and keen observer of India, China, Tibet and Jammu and Kashmir affairs. Sir has worked on staff of leading media groups including India Today, BBC World, Aajtak, G News, DD News, etc. Vijay Kanti ji is a regular commentator on Tibet, China and Kashmir related affairs. Vijay ji is internationally acclaimed photographer. Sir has authored over a dozen of books. Once again, I welcome you, sir. Thank you very much. Thank you. Thank you, Chirag sir, for introducing Vijay sir. Again, welcome to Vijay Kanti sir on behalf of Jeevan Jyoti Trust, our college, and special guest BL Vora sir on behalf of Vijay sir and Ayushi Ketkar madam. We also welcome you all on behalf of Trust and our institution. So now I am request to all the participant कि ड्यूरिंग दिस सेशन सर की स्पीच के दौरान आपके जितने भी क्वेश्चन है ओके आप चैट बॉक्स में यहाँ पर रख सकते हैं. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द स्पीच ऑफ सर वी विल रेज योर क्वेश्चन एंड वी विल डिस्कस विद विजय सर. सो आप सभी को रिक्वेस्ट है जितने भी सोशल मीडिया से आप जुड़े हैं, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टा, ये सभी पर आप जहाँ से भी जुड़े हैं आप वहीं सोशल मीडिया पर आपके क्वेश्चन रख सकते हैं चैट बॉक्स के दौरान और आपके क्वेश्चन हम सेशन के बाद हम सर के साथ डिस्कशन में लेंगे. सो नाउ द सेशन इज आई एम हैंडलिंग द सेशन टू विजय सर. ओवर टू विजय सर. बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का. आपने ये जो मुझे सम्मान दिया है आज के विषय को प्रस्तुत करने का, मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि मैं उसके साथ पूरा जस्टिस करूँगा. और ये जो आज का हमारा विषय है ये अचानक ही जो हमारा मानस पटल है भारत का, न सिर्फ भारत का बल्कि कई देशों के जो रणनीति का जो सोचने का पटल है उस पर अंडमान निकोबार एकदम बड़े अच्छे तरीके से उभर कर आया है. और अंडमान निकोबार की क्या क्या संभावनाएं हैं, वो क्यों महत्वपूर्ण हुआ है, उसमें उसको केंद्र बनाकर जिस तरह के विचार चल रहे हैं, जिस तरह की अलग अलग देशों के बीच भारत सरकार जो रणनीति बना रही है उसको ध्यान में रख के जो अंडमान निकोबार का एक नया महत्व एक स्ट्रेटेजिक दृष्टि से, इकोनॉमिक दृष्टि से उभरा है, मेरा आज का विषय उसके बारे में है. और ताकि मेरी बातचीत थोड़ी ऑर्गेनाइज्ड रहे और मैं बिना इधर उधर भटके आपसे इस मुख्य विषय पर लगातार टिका रहूं, इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार किया है जिसके थ्रू मैं अपनी पूरी बात कहूँगा. तो मैं इसको आपके लिए शुरू करता हूँ. अंडमान निकोबार आप सभी जानते हैं ये भारत का जो मुख्य भूमि है उससे बहुत दूर है. और लोकेशन के हिसाब से ये देखिए जो मैंने मार्क किया है तो भारत का जो दक्षिण पूर्वी जो भारत का कोना है
ये ठीक उसमें है। अगर भारत को एक चौकोर में खड़ा किया जाए तो ये उत्तर पूर्वी जो दक्षिण पूर्वी जो कोना है उसमें हमारा जिसको कहिए कि हमारी अग्रिम चौकी है, हमारी उपस्थिति है, ये वो क्षेत्र है। आपको याद होगा कि इतिहास के हिसाब से जहां स्वतंत्र भारत का पहली बार ध्वज फहराया गया था। तो ये कई द्वीपों से बना हुआ है। हमारा जो सोच है भारत की, अभी तक अच्छा कहें बुरा कहें, हम लोग पिछले 70 साल में जो आम भारतीय है, जो भारतीय नीति निर्धारक हैं, जो भारत के बुद्धिजीवी हैं, जो विचार देने वाले हैं देश को, विचारों की दिशा को दिशा देने वाले हैं, दुर्भाग्य से उनके मानस पटल से अंडमान निकोबार हमेशा गायब रहा। हम लोग वहाँ सिवाय वो जो पुरानी जो छवि है काला पानी की, हम उससे आज तक बाहर नहीं आ पाए। जहाँ बहुत सारे हमारे जो स्वतंत्रता संग्रामी थे जेलों में रहे, शहीद हुए, उनको याद करना सचमुच बहुत बड़ी बात है। लेकिन देश के इतने महत्वपूर्ण स्थान को हम वरना उसके अलावा अपने मानस पटल से गायब रखें, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। जो सेलुलर जेल है वहाँ की, वो बहुत मशहूर है, आजकल टूरिस्ट सेंटर है। वहाँ बहुत बड़े बड़े क्रांतिकारी जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ बलिदान किया, वो इन यहाँ की जेल में रहे। वीर सावरकर उनमें से सबसे प्रमुख, उनके वजह से अब अंडमान निकोबार को याद किया जाता है। वो शहीद जिन्होंने अपनी जान दी, वहाँ फांसी पर लटकाए गए, टॉर्चर से मारे गए, वो आज हमारी श्रद्धा के पात्र हैं। और अब समय है कि हम इस पवित्र भूमि को एक नए तरीके से श्रद्धांजलि दें, भारत को ताकतवर बनाकर। अब सवाल आ रहा है कि अचानक अंडमान निकोबार की बात मैं क्यों कर रहा हूं, आपका कॉलेज क्यों कर रहा है और समाचार पत्रों में क्यों है। तो इसके कुछ मोटे मोटे बिंदु हैं। एक सबसे बड़ा कारण जिसने अंडमान निकोबार को अचानक हमारे सोच में एक प्रमुख स्थान दे दिया, वो है कि चीन ने जो फिर से जो हमला किया हमारी उत्तरी सीमा पर, खासतौर से लद्दाख में, और वो जो टकराव है वो लगातार गंभीर बनता जा रहा है। तो उसने अब लोगों को सोचने पर मजबूर किया है कि क्या हम सिर्फ अपना मोर्चा हिमालयवर्ती सीमा को रखेंगे, क्या हम कुछ ऐसे रास्ते नहीं खोज सकते कि जहां हम चीन को पीटने की बेहतर स्थिति में हो, हमारी लागत ऑन लोअर एक्सपेंसेस वी गेट बेटर रिजल्ट्स इन डीलिंग विद चाइना। तो चीन का जो ये जो रवैया है उसने अचानक अंडमान निकोबार को महत्वपूर्ण बनाया है। फिर चीन ने जो हमारे सागर हैं, समुद्र हैं, जो अरब सागर है, बे ऑफ बंगाल है और हिंद महासागर है, उसमें उसने बहुत जगहों पर पहल करके अपने अड्डे बना लिए हैं जो हमारे लिए खतरा हो गया है। और जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्र हैं, जो भारत से जिनका सीधा संबंध है, उन समुद्रों में उसकी जो थ्रेटनिंग पोस्चर हैं, उसकी वजह से अंडमान निकोबार जो है महत्वपूर्ण हो गया है। पिछले कुछ साल में जो क्वाड है वो शुरू हुआ था, फिर ठंडा हो गया, अब फिर गर्म हो रहा है। तो क्वाड की भूमिका अचानक महत्वपूर्ण हो गई है और उसका जो सबसे बड़ा केंद्र अंडमान निकोबार होने जा रहा है। उस कारण भी अंडमान निकोबार महत्वपूर्ण है। इकोनॉमी की दृष्टि से जो अंतर्राष्ट्रीय इकोनॉमी है उसमें भारत क्या भूमिका निभा सकता है। भारत न सिर्फ भारत की इकोनॉमी की सुरक्षा करने के लिए, बल्कि साउथ चाइना सी और प्रशांत सागर, इन सब के बहुत सारे देशों की सुरक्षा चीन से करने के लिए ये जगह महत्वपूर्ण होने जा रही है। फिर उसके अलावा भारत की इकोनॉमी के लिए में ये इसका महत्वपूर्ण स्थान है। वहाँ टूरिज्म की संभावनाएं बहुत अच्छी हैं। अभी जो हांगकांग में परिवर्तन हो रहा है, अचानक हांगकांग की भूमिका जो है वो बदल गई है और वहाँ से जो दुनिया के जो बड़ी बड़ी कंपनियां भाग रही हैं। तो हम आज इसकी भी चर्चा करेंगे कि क्या अंडमान निकोबार को हम भारत का नया हांगकांग बनाने की स्थिति में हैं। अब कई लोग सोचेंगे कि ये अंडमान निकोबार क्या छोटा सा द्वीप है, छोटी सी जगह है, ये क्या कर लेगा। दुर्भाग्य से हम कभी अपने देश को समझ नहीं पाए। मेरा ख्याल है कि आप मुझसे सहमत होंगे कि अब समय है हम अपने देश के जो उसकी ताकत है उसको पहचानना शुरू करें।
अंडमान निकोबार का इलाका जो है वो छोटा सा नहीं है, वो 8,000 किलोमीटर से ज्यादा, 8,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा है। वो जो नंबर ऑफ आइलैंड्स हैं उसमें वो 572 आइलैंड्स हैं। ये कोई छोटी संख्या नहीं है, एक आइलैंड नहीं है ये, या 2 आइलैंड नहीं है अंडमान और निकोबार। 572 आइलैंड्स हैं जिनके अलग अलग आकार हैं, अलग अलग लोकेशन है। उसकी वजह से उनकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हर तरह से हर द्वीप की अपनी है, और वो हमारी संपत्ति है, एसेट है। और अंडमान निकोबार ऊपर से लेकर यानी और नॉर्थ में से लेकर दक्षिण तक वो 3 देशों की सीधी लंबाई में चलता है। वो म्यांमार भी है, वो थाईलैंड भी है, और ये जो इसकी लंबाई जो है 660 किलोमीटर है। अब लोग पूछेंगे कि ये ठीक है, फिर भी इसके बड़े होने का मतलब क्या है? तो बड़े छोटे में अगर मैं बताऊं आपको, तो हांगकांग से इसका इलाका 8 गुना है, सिंगापुर के मुकाबले ये 11 गुना बड़ा है, सेशल्स के मुकाबले 20 गुना बड़ा है, और मॉरिशस देश के मुकाबले 4 गुना बड़ा है। इसका मतलब है कि ये कोई छोटी जगह नहीं है जो जिसको हम कभी इज्जत से और पूरी तरह और उसके पूरे अर्थपूर्ण संदर्भ में कभी याद ही नहीं करते हैं। हमें किसी भारतीय से पूछिए हमारे पड़ोसी देश कौन है, तो वो पाकिस्तान, चीन और तिब्बत और बांग्लादेश और म्यांमार बता के और श्रीलंका बता के चुप हो जाते हैं। पढ़े लिखे लोगों को मालूम नहीं है कि इंडोनेशिया हमारा पड़ोसी देश है, थाईलैंड हमारा पड़ोसी देश है, इमीडिएट पड़ोसी, जिसको इमीडिएट कहते हैं, अगला देश हमारी भूमि से। हाँ, वो क्योंकि अंडमान निकोबार जो है इस समय 6 देशों के साथ उसकी सीमाएं बिल्कुल बहुत नजदीक हैं। जो इमीडिएटली नेक्स्ट जिसको सीमा कहते हैं, म्यांमार के साथ है, इंडोनेशिया के साथ है, थाईलैंड के साथ है, मलेशिया, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो ये कोई कम महत्वपूर्ण नहीं है जगह जिसको हम कभी अपनी गिनती में नहीं रखते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो नीति निर्धारक हैं, जो हमारे विचारक लोग हैं, उन पत्रकार लोग हैं, इनको अपने दिमाग की नए सिरे से शायद धुलाई करनी चाहिए कि हमें समझ में आए कि हम कौन देश हैं। ये एक ऐसा द्वीप समूह है जो 4 यूं समझिए कि 3 समुद्रों से घिरा हुआ है। बे ऑफ बंगाल है, अंडमान सी अपने आप में एक पूरा समुद्र है, उसका पूरा नाम है अंडमान सी। इंडियन ओशन जो है उसके बीच में है ये, और फिर ये एकदम मुंह पर बैठा हुआ है मलक्का स्ट्रेट के। ये जो मलक्का स्ट्रेट है दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण शिपिंग का इलाका है। ये मलक्का स्ट्रेट जिस दिन अचानक बंद होगा तो आप ये सोचिए कि दर्जनों देशों की अर्थव्यवस्था बुरी तरह लड़खड़ा जाएगी। चाइना ने पिछले कुछ साल में बहुत चालाकी दिखाते हुए, होशियारी दिखाते हुए भारत के आसपास 5 इलाकों में नेवल अड्डे, नौसैनिक अड्डे अपने बना लिए हैं जो भारत के लिए खतरा बन गए हैं। एकदम पश्चिम में देखें तो ग्वादर, जहां पाकिस्तान और ईरान की सीमा, वो जो खाड़ी वाला जो इलाका है, लास्ट पॉइंट पर ग्वादर, वहां पाकिस्तान ने, चीन ने नौसैनिक अड्डा बनाया है। और इसका परिणाम ये हुआ है कि जिनको याद है 1965 और 1971 के युद्ध में भारत ने जिस तरह से कराची में पाकिस्तान की नौसेना को थोड़ी देर में ही बिल्कुल नकारा कर दिया था। इंडिया की सुप्रीमेसी बनी थी नेवल ऑपरेशंस में, वो खतरे में आ गई है क्योंकि उसके पैरेलल ग्वादर खड़ा कर दिया है चीन ने। फिर श्रीलंका के बिल्कुल साउथ में हम्बनटोटा, वहां पर एक नौसैनिक अड्डा बन गया। और दुर्भाग्य की बात यह है कि श्रीलंका ने पहले ये नौसैनिक अड्डा भारत को बनाने की पेशकश की थी। अब ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे जो अफसरशाह लोग हैं, जो नीतियां तय करने वाले, राजनेताओं को समझाने वाले, वो बिल्कुल, अब उनके लिए मैं बहुत खराब शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहता, लेकिन उन्होंने बहुत निराश किया पूरे देश को लगातार 70 साल तक। वो कभी सोच ही नहीं पाए कि देश, भारत की जरूरतें क्या हैं, खतरे क्या हैं, भारत को कहाँ सावधान रहना है। तो उन्होंने सीधी रिपोर्ट दी भारत सरकार को कि अरे छोड़िए, ये तो बहुत महंगा सौदा है, हमें इससे कोई आर्थिक लाभ नहीं होने वाला है, छोड़ दीजिए। और चीन ने वो थाम लिया। आज ये हालत है
कि कुछ साल पहले ये स्थिति थी कि अगर नक्सलवादी लोग, माओवादी लोग भारत की जो चिकन नेक है उस इलाके को घेर के बंद कर देते तो भारत के 8 जो राज्य हैं जो नॉर्थ ईस्ट वाले वो पूरे भारत से कट जाते। अगर भारत की सेना, पुलिस उधर जाना चाहती तो ये जो नक्सलियों ने, मैं उसको आपको नक्शे में दिखाऊंगा कि किसी एक और मेरी प्रेजेंटेशन है, तो नक्सलियों ने जो पशुपतिनाथ से पशुपति से तिरुपति तक जो एक नक्सल वॉल ऑफ चाइना वहां क्रिएट कर दी है, वो भारत की सेनाओं को इधर रोक देती और चीन जब चाहता लूट कर ले जाता हमारे सारे राज्यों को। तब भारत सरकार, नेवी ने जब सोचा कि हम उधर, नेवी एक बचती है सेवा जो उधर जाएगी या एयरफोर्स, तो हम्बन टोटा की वजह से भारतीय नेवी की मूवमेंट बिल्कुल कंट्रोल हो जाती चीन की उपस्थिति के कारण। तो यही कारण है कि भारत ने अब जो नए कदम उठाए हैं कि जो उत्तर पूर्वी जो हमारी उत्तर पूर्वी राज्य हैं, पूरी उनकी जो कमांड है पूरी की पूरी नई इंडिपेंडेंट एयरफोर्स की और सेना की वहाँ इंडिपेंडेंट खड़ी कर दी हैं। इतना बड़ा वहाँ नेटवर्क बनाया है कई सालों में कि चीन का खतरा आने पर हम उसको निपट सके। ये अंडमान निकोबार के ठीक ऊपर एक कोको आइलैंड है जो म्यांमार का है, बर्मा का। वो बर्मा पर प्रभाव जमा के चीन ने अपने नियंत्रण में ले लिया। अब वो भारत के लिए खतरा बना हुआ है वो अड्डा। बांग्लादेश ने चिटगांव में सुविधाएं दे दी हैं चीन सरकार को, चीनी नेवी को, वो भी हमारे लिए खतरा है। तो ये इस तरह से चीन हमको घेर रहा है। अभी आपने खबरें सुनी होंगी कुछ दिन पहले कि भारत के प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया ऑप्टिकल फाइबर का, जो चेन्नई से लेकर पोर्ट ब्लेयर तक गया और खबरों में रहा। हमारे बहुत सारे दोस्त सोचते हैं कि अरे ये बेचारे जो अंडमान निकोबार में रहने वाले लोग हैं वो 2G पर चल रहे थे तो अब उनका टेलीफोन इम्प्रूव हो जाएगा, उनको भी 4G मिलेगी। हम ये सोच ही नहीं पा रहे हैं कि अगर इस सरकार ने, मोदी जी ने ये ऑप्टिकल फाइबर वहां बिछाने का जो काम किया है वो टेलीफोन कुछ लोगों की सुविधा, अफसरों की सुविधाओं के लिए या कुछ आदिवासियों के फोन को 2G से 4G करने के लिए वो मात्र नहीं है, वो तो होगा ही होगा। इस ऑप्टिकल फाइबर की लंबाई है 2312 किलोमीटर। अब आप सोचिए कि एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसने व्यक्तिगत रुचि लेकर इसको 22 महीने के भीतर, ये मजाक नहीं है, कि समुद्र के तल पर जहां नीचे पहाड़ हैं, घाटियां हैं, सब तरह की मुश्किलें हैं और उनमें सुरक्षित ऑप्टिकल फाइबर बैठा रहे जिसको दुश्मन मौके पर तोड़ ना सके, वो सुरक्षा व्यवस्था भी उसकी करनी है। तूफान आने पर जो जिसको कहते हैं समुद्री तूफान में वो खराब भी नहीं हो, भूकंप आए तब नहीं टूटे, ये कोई मजाक नहीं था। लेकिन प्रधानमंत्री ने व्यक्तिगत रुचि ली और 22 महीने में उसको चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर लाकर एक्टिवेट कर दिया। इसका मतलब जो रक्षा विशेषज्ञ वो जानते हैं कि अगर आपको वहां नेवल बेस बनाना है, अगर आपको एयरफोर्स बेसिस रखने हैं, अगर आपकी आर्मी को एक्टिव होना है, अगर आपके बिजनेस को एक्टिव होना है, अगर आपकी कम्युनिकेशन जो है मुख्य भूमि के साथ एकदम पूरी तरह निर्बाध बनी रहे, तो उसके लिए ऑप्टिकल फाइबर जरूरी होता है। तो मेरे हिसाब से ये पहला कदम है अंडमान निकोबार को एक नए रक्षा केंद्र के रूप में विकसित करने का। और आप भी हैरान होगा तो होगा, मैं भी नहीं होऊंगा अगर आने वाले कुछ समय में हम अचानक सुने कि भारत सरकार ने ऐसी 2-3 और लाइनें बिछा दी हैं। तो कोलकाता से भी हो सकती है, विशाखापट्टनम से भी हो सकती है। तो ये महत्व बताता है इस इलाके का। हम बात कर रहे थे कि अंडमान निकोबार की जो उपस्थिति है वो मलक्का स्ट्रेट, अगर आप देखें ना मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में, और नीचे टिप है सबसे नीचे मलेशिया के नीचे सिंगापुर, ये जो समुद्री मार्ग है बहुत पतला है, ये इसका महत्व बहुत ज्यादा है। ये वो इलाका है, इसको मलक्का स्ट्रेट कहते हैं। और इस इलाके से होकर ये जो आप लाल रेखाएं देख रहे हैं, ये मोटे मोटे समुद्री वो शिपिंग रूट्स हैं कि जहां जापान भी, चाइना, वियतनाम, कंबोडिया, ब्रुनई, मलेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड, इन सब देशों के लिए समुद्री जहाज यहाँ से आते हैं और बाकी दुनिया को जाते हैं। तो मलक्का स्ट्रेट का अपना महत्व है।
ये जो साउथ चाइना सी, जहां चीन ने आजकल, अगर मैं वो शब्द इस्तेमाल करूं कि धौंस भट्टी गुंडागर्दी शुरू की है देशों को धमकाने की, तो वो पूरा इलाका जो है वो यहाँ से उसके रास्ते आते जाते हैं। मलक्का स्ट्रेट का जो आर्थिक महत्व है वो आप चीन की दृष्टि से देखिए इसको, कि उसका 60% से ज्यादा, 60 और 80% के बीच जो कच्चा माल वो लेता है एशिया से, वो अफ्रीका से, यूरोपियन देशों से, खाड़ी से, वो मलक्का स्ट्रेट से होकर चाइना पहुंचता है और वहाँ की फैक्ट्रियां काम करती हैं। उन फैक्ट्रियों में जो माल बनता है वो फिर आके जहाज़ों में लद कर मलक्का स्ट्रेट से दुनिया भर के देशों में जाता है। तो ये जो इंपोर्ट्स है, ऑयल इंपोर्ट, रॉ मटेरियल्स, उसका एक्सपोर्ट्स, वो सब जो हैं, और फिर चीन ने जितने नेवल बेस बनाए हुए हैं हिंद महासागर में, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, वो सब, उसके लिए रास्ता मलक्का स्ट्रेट है। अब आप इमेजिन करिए कि अगर भारत और उसके देश अंडमान निकोबार जो मुंह पर बैठा हुआ है मलक्का के, अगर वो इस स्थिति में आ जाते हैं कि वो वहां पर चीन की आवाजाही को रोक सके, तो चीन के ऊपर ऐसा असर होगा कि चीन उठ नहीं पाएगा। चीन की इंडस्ट्री इस वक्त ये हालत है, चीन ने दुनिया भर में आयात निर्यात का सबसे बड़ा वो व्यापारी है, ये उसको फायदा है, लेकिन इसने उसको वल्नरेबल भी बना दिया है। क्योंकि अगर ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर प्रभाव पड़ता है, अगर उसकी मैन्युफैक्चरिंग पर रुकती है, तो चीन में सिर्फ व्यापार नहीं घटेगा, चीन में करोड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। और तब आप चीन में वो देखेंगे जो 1979 में वो जो लड़के थे तिएननमेन स्क्वायर के, वो बड़े भले लोग थे, वो कागज के ऊपर कविता लिखकर अपनी क्रांतिकारी सरकार के खिलाफ दीवार पर चिपकाते थे और सोचते थे कि हमने क्रांति कर ली। तो ये जो स्थिति थी वो उस समय थी, और उनको चीन की सरकार ने टैंकों से कुचलकर उनका खेल खत्म कर दिया। आज का जो चीनी है, जो युवक है, वो बहुत ही एम्बिशियस है। वो माओ के बजाय वो देंग जियाओपिंग का चेला है। देंग जियाओपिंग ने कहा था कि टू बी रिच इज ए वर्च्यू, यानी एक कम्युनिस्ट देश में अमीर होना जिसको गाली माना जाता था, उसने कहा कि ये तो उपलब्धि है। और नतीजा ये कि आज करोड़ों युवा उनको रईसी में भी आए हैं, सुविधा संपन्न हो गए हैं और आराम संपन्न हो गए हैं। जिस दिन उनके हाथ से रोजगार निकलेगा, ये करोड़ों लोग कविता नहीं लिखेंगे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का झंडा उखाड़ देंगे। तो इसलिए मैं कई बार ये दलील देता हूं कि भारत को हर बार चीन के साथ लद्दाख में, डोकलाम में टक्कर मार के दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। भारत को अब वो मोर्चे खोलने चाहिए जहां हम चीन को कम लागत में बुरी तरह मार सकते हैं, और अंडमान निकोबार जो है उसका सबसे बड़ा कैंडिडेट है। ये लाइफलाइन है, ये वहां का सीन है मलक्का स्ट्रेट का। जैसे शिप्स इस तरह दुनिया भर के देशों के, यूरोप के भी, अमेरिका के भी, चाइना के भी, जापान के भी, ताइवान के भी, सब के देशों के जाते हैं, और वहां चीन ने अपनी सुविधाएं बहुत बड़े पैमाने पर बनाई हुई हैं। अब सवाल ये आता है कि क्या इंडिया अंडमान निकोबार में गेम चेंजर बन सकता है? हम बनना चाहते हैं क्या? इसके लिए बहुत बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। मेरे जो मित्र मेरी आयु के हैं, उन्हें याद होगा कि 1965 में जब भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, उस समय हमारे साथ कोई भी नहीं था। 1962 में भी हमारे साथ कोई नहीं था जब चीन ने हमला किया। रूस ने, सोवियत संघ ने हमें कह दिया था कि भाई आप तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन चीन मेरा भाई है। अमेरिका जो है क्यूबा क्राइसिस में फंसा हुआ था, अपनी उसको जान की पड़ी हुई थी, तो उसके पास बहुत फुर्सत नहीं थी हमारी मदद करने की। तो हमने 1962 की वॉर में अपने लिए जो कर सकते थे हमने किया। 1965 में हमारे साथ कोई नहीं था। सोवियत संघ हमें हथियार दे रहा था, लेकिन बाकी अमेरिका जो है हमें धमकी दे रहा था। हमारे प्रधानमंत्री को उसने धमकी दी, अमेरिकी राष्ट्रपति ने, कि तूने अगर पाकिस्तान को पीटना बंद नहीं किया तो मैं तेरा PL-480, जिस पर हमको भीख मिलती थी खाने की, वो बोले वो बंद कर दूंगा। और यकीन मानिए उस वक्त हमारी खाद्य स्थिति ये थी कि PL-480 बंद हो जाता तो भारत में युद्ध से नहीं, दंगों से ही बर्बादी हो जाती। हमारे यहाँ खाने की एक कमी थी। वो तो अलग बात है कि हमारे बाद के प्रधानमंत्रियों ने भारत को आज सक्षम बना दिया
कृषि के मामले में हम आज एक्सपोर्ट करते हैं, हम भीख नहीं मांगने जाते हैं। लेकिन 1971 की लड़ाई में अमेरिका पूरी तरह पाकिस्तान के साथ था। अपने सबसे बढ़िया टैंक, अपने सबसे बढ़िया हवाई जहाज उसने पाकिस्तान को दिए हुए थे और उसने धमकी दे दी थी भारत को, और बल्कि भेज दिया था। उसको 7th फ्लीट कहते थे, 7वां बेड़ा अमेरिका का। तो अमेरिका ने धमकी दे दी थी इंदिरा गांधी जी को कि हम तुझे छोड़ेंगे नहीं, अगर तूने पाकिस्तान को तोड़ने के लिए बांग्लादेश में ये युद्ध जारी रखा तो हम अपना बेड़ा भेज रहे हैं। तब वो इंदिरा जी थी जिन्होंने वो पूरी हिम्मत दिखाई और भारत जीता उस समय। तो ये सारा श्रेय हमारे बहादुर जवानों को जाता है, देश की एकता को जाता है। हमारे पास जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उनको जाता है, रक्षा नेतृत्व को जाता है। लेकिन उस वक्त दुनिया हमारे खिलाफ थी, हम अकेले लड़ रहे थे और 7th फ्लीट हम पर धमकी देने के लिए आ रहा था। लेकिन अब जो परिवर्तन हुआ, आपने याद किया, देखा पिछले 1-2 महीने में अमेरिका का जो सबसे बड़ा हवाई बेड़ा, जो 7th फ्लीट से कई गुना बड़ा है, निमित्ज, वो साउथ चाइना सी से जब वापिस आ रहा था तो उसने भारत को कहा कि हम आपके यहाँ, आप हमें बुलाइए, हम आपके मेहमान बनेंगे। और ज्वाइंट एक्सरसाइज के लिए निमित्ज ने एक ज्वाइंट एक्सरसाइज थी, उसका नाम पासेक्स था। ये गुजरते हुए जो एक ज्वाइंट एक्सरसाइज की जो उसने भारतीय नेवी के साथ की वहां पर। तो आज हमारी स्थिति जो है उस जमाने से बहुत अलग है। आज हमारे साथ दोस्त हैं, हम अकेले नहीं हैं। हमारी अपनी डेवलपमेंट रक्षा के क्षेत्र में है, इकोनॉमी के क्षेत्र में है, कृषि के क्षेत्र में है, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में है। तो हम कोई ऐसे कमजोर देश नहीं है कि छोटी छोटी अखबार कई बार मूर्खता भरी खबरें छापते हैं और पूरा देश चिंतित हो जाता है कि चीन जो है वो हिमालय में हमको खा जाएगा। अब वो स्थिति नहीं है। तो अब जो एक परिवर्तन हो रहा है, जो बहुत बड़ा परिवर्तन है, 2005 में शायद बना था क्वाड, 4 देशों का, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तब प्राकृतिक आपदाओं से पर ज्वाइंटली एक्शन लेने के लिए, लोगों की जान बचाने के लिए संगठन बना था क्वाड। लेकिन उसके बाद जो है ऑस्ट्रेलिया में केविन रड एक प्रधानमंत्री आ गए जो पूरी तरह चीन की गोदी में बैठने वाले एक लीडर थे। तो चीन के कहने पर उन्होंने, क्योंकि चीन को मालूम था क्वाड का मतलब क्या होगा बाद में, तो ऑस्ट्रेलिया ने छोड़ दिया, हम नहीं रहेंगे इसमें। और तब 3 देशों का रह गया, भारत, अमेरिका और जापान। लेकिन अब जब ऑस्ट्रेलिया की नाक में दम कर दिया है चीन ने, तो अब उसको याद आ रहा है। अब नेतृत्व भी बदल गया है, वो उनको समझ में आ रहा है कि अब ऑस्ट्रेलिया के हित कहाँ है, तो अब वो भी शामिल हो रहा है इसमें। अब वो अभी आपने देखा कल या परसों की जो मीटिंग थी विदेश मंत्रियों की जापान में, इन 4 देशों के विदेश मंत्री कोविड के बावजूद, जो हम जैसे वेबिनार कर रहे हैं, दुनिया के सारे देश अभी तक ऑनलाइन मिल रहे थे। लेकिन ये बहुत बड़ी घटना हुई है कि 4 देशों के विदेश मंत्री जो हैं वो कल परसों उसमें थे, जापान में थे, और क्वाड को रिवाइव करने का काम शुरू हो गया है। तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है। और मैं ये मानता हूं कि जो क्वाड और क्वाड का जो मुख्य केंद्र होने वाला है वो अपनी लोकेशन की वजह से अंडमान निकोबार रहने वाला है। तो हम उम्मीद करें कि जो क्वाड है वो एक तरह से चाइना के खिलाफ जो अंडमान है वो क्वाड की वैक्सीन बनकर उभर रहा है। ये चीन की जो बीमारी है, चीन खुद एक वायरस बनकर दुनिया को खा रहा है, उसका इलाज अंडमान से निकलेगा और अंडमान जो है वो वैक्सीन की तरह इस वायरस को सीधा करेगा। अब सवाल आता है कि जो इकोनॉमिक डायमेंशंस जो है वो अंडमान निकोबार की क्या है। अंडमान निकोबार जहां पर है, हमने बताया कि वो जो मलक्का स्ट्रेट है, क्योंकि दुनिया भर के जहाज वहां से आते जाते हैं, इसलिए शिपिंग इंडस्ट्री की जो एलाइड सर्विसेज हैं, शिप्स की मरम्मत होती है, रख रखाव होता है, और उसके अलावा वहाँ नए शिप्स बनाए जाते हैं, लॉन्च किए जाते हैं, जितनी भी उनसे जुड़ी उनकी आवाजाही का जितना भी नेटवर्क है, वो सारे का कंट्रोल बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, दुनिया भर के देशों की कंपनियां वहां से करती हैं। लेकिन अब मलक्का स्ट्रेट जो है वो सेचुरेट हो चुका है, वहां नए शिपिंग हब्स की कोई गुंजाइश नहीं है, और वहाँ इतनी भीड़ है आने जाने के मामले में कि दुनिया के बहुत सारे देश जो हैं वो प्रतीक्षा करते हैं कि हमको
वहाँ जगह मिले तो अंडमान निकोबार जो है वो शिपिंग हब बन सकता है। वहाँ टूरिज्म की बहुत सारी संभावनाएं हैं, सबसे खूबसूरत इलाकों में से है अंडमान निकोबार। तो वहाँ भारतीय टूरिस्ट के लिए तो अभी थोड़े लोग जाते हैं, लेकिन अब संभावना ये बन रही है कि क्योंकि थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर ये सैचुरेट हो चुके हैं, लोग भी तंग आ चुके हैं उन्हीं जगहों पर बार बार जाने से। तो अब ये बन रहा है कि ये सारे देश जो हैं अपना अंडमान निकोबार के साथ एक्सटेंशन जोड़कर जो टूरिस्ट पैकेजेस हैं इंटरनेशनल, उनमें अंडमान निकोबार भी जोड़ दिया जाए, जिससे इन देशों का आकर्षण बना रहे। तो वो एक बहुत बड़ी संभावना है भारत के लिए। अंडमान निकोबार बहुत खूबसूरत इलाका है, बहुत खूबसूरत। और अब जो आखिरी सवाल आ रहा है वो हांगकांग को लेकर है कि क्या अंडमान निकोबार जो है आज इसको रिप्लेस कर सकता है हांगकांग को। हांगकांग की इस वक्त जो अर्थव्यवस्था है बहुत विशालकाय है, दुनिया की 6ठी लार्जेस्ट वहाँ का स्टॉक एक्सचेंज है। वहाँ की जीडीपी जो है वो लगभग $500 बिलियन है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में वो दुनिया में 3री जगह पर है। उसकी एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स, एफडीआई स्टॉक, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन, फॉरेन रिजर्व्स के मामले में बहुत आगे है। लेकिन हुआ ये है कि चीन जैसे वो एक हमारे यहाँ राक्षस था ना, वो उसका नाम क्या था जो 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 नाम फिर से जो हर किसी के जिसके सिर पर हाथ रखेगा उसको नष्ट कर देगा। तो वो चीन आज विनाशकाले विपरीत बुद्धि वही हो रहा है उसके साथ। उसने हांगकांग में डेमोक्रेसी खत्म करने के लिए जो अभियान चलाया है, नए कानून बदले हैं, उसके लिए वहां जनता खड़ी हो गई है उसके खिलाफ। लेकिन चीन ने जो स्वतंत्र वातावरण था, डेमोक्रेटिक वातावरण था, व्यापार की खुली छूट थी हांगकांग में, जिसकी वजह से दुनिया भर की कंपनियां वहां पर आई हुई थी, रहती थी पिछले कई साल से, अब वो उसने खत्म कर दी है। अब आप इमेजिन करिए कि 1997 में जब ब्रिटेन ने हांगकांग को चीन के हाथ सौंपा था, तब ब्रिटेन ने भारत सरकार को सलाह दी थी कि आप अब क्योंकि ये कम्युनिस्ट चीन के पास जा रहा है, आप अंडमान निकोबार को डेवलप करिए एंड लेट अस डेवलप ए न्यू हांगकांग। तब वही हमारे ये जो अफसरशाह जो हैं, तो दुर्भाग्य से हमारे जो लीडर हैं अब उनकी क्वालिटी वो तो रही नहीं है। उन्होंने जातियों के हिसाब पर वोट मांगते हैं। बाप अपने बेटे का बेटा, उनकी बीवी, उनके बच्चे, वो उनसे मंत्रिमंडल बनाते हैं। तो उनके पास सोच देश के लिए, राज्य के लिए तो बची नहीं है, इसलिए वो अफसरशाही के भरोसे चलते हैं। तो 1997 में तब अफसरशाहों के कहने पर भारत सरकार ने मना कर दिया, अरे नहीं जी, हमारी सुरक्षा पर खतरा आ जाएगा, तो हमें यहाँ इसको नहीं बनाना है। और नतीजा ये है कि आज जब दुनिया भाग रही है वहाँ से, कंपनियां दुनिया की भाग रही हैं, तो अंडमान निकोबार उस हालत में नहीं है। हांगकांग पर चीन की फौज आकर जम गई है, वहाँ के लोग हताश हो गए हैं। और वहाँ क्या हो रहा है, अब ये रोज आप खबरें पढ़िए कि कंपनीज जो हैं वो भाग रही हैं हांगकांग से। वहाँ के जो नए कानून हैं वो अब वहाँ की जो फाइनेंशियल हब, उसका जो चरित्र था उसको बर्बाद कर दिया उसने। और हांगकांग पर जो उसकी जो नियंत्रण है वो वहाँ के बिजनेस वातावरण के अनुकूल नहीं है। तो कंट्रीज, अब बहुत सारे देश हैं जो हांगकांग की कंपनी को अपनी तरफ खींच रहे हैं और जा भी रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या हम अभी भी इसको अंडमान निकोबार को उस स्थिति में ले आए कि वो अब हांगकांग का शिप क्योंकि डूब रहा है, तो हम वहाँ से जो भागने वाले हैं उनके लिए हम शरण स्थल बने, अंडमान निकोबार जो है एक व्यापारिक समूह बने, केंद्र बने। तो हमें सवाल वही आता है कि अंडमान निकोबार में पूरी संभावना है नया हांगकांग बनने की। वहाँ अंडमान निकोबार में नई डायमेंशंस हैं, नई पोटेंशियल्स हैं, लेकिन असली सवाल यह आता है कि क्या भारत सरकार उसके लिए तैयार है। और ये असली सवाल है जिसका जवाब अगर मोदी सरकार पॉजिटिव में हाँ में ले आती है और वो सुविधाएं क्रिएट करती है, तो फिर अंडमान निकोबार बड़ा अलग इलाका होगा। और मेरा ख्याल है इससे बड़ी श्रद्धांजलि हम अपने जो शहीद हैं, जिन्होंने अंडमान के काला पानी में सारी कष्ट भोगे, इससे बड़ी श्रद्धांजलि भारत नहीं दे सकता अपने उन वीरों को। धन्यवाद। सर, आपने ग्राफिकली बहुत अच्छी तरीके से बताया
जो अनजान पहलू थे, जो हमें पता ही नहीं था कि हमारे पास क्या है। अंडमान निकोबार में कौन कौन से स्ट्रेटेजिकली कौन कौन से एडवांटेज है, वो आपने ग्राफिकली बहुत अच्छी तरीके से बताया। सर कुछ क्वेश्चंस है। जी। जैसे पहला एक क्वेश्चन है कि अंडमान निकोबार में ज्यादातर ट्राइबल लोग रहते हैं, तो उन लोगों को कैसे मुख्य धारा में लाया जाए, और ये जितने भी डेवलपमेंट रिलेटेड जो भी इश्यू है वो लोग क्या एक्सेप्ट करेंगे कि मतलब वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए, वो लोग उसका अपोज नहीं करेंगे, और उसको किस तरीके से हम जोड़ के रखें? मुझे मालूम था ये सवाल आएगा। क्यों? मैं पत्रकार हूँ, मैं जानता हूँ कि हम अंडमान निकोबार को काला पानी के बाद हम या तो एक सुनामी की वजह से हमने याद किया, या फिर कभी कभी हम याद करते हैं कि वहाँ आदिवासी रहते हैं। आदिवासी वहाँ रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर किसी को ये गलतफहमी है कि 8,000 किलोमीटर 8,500 किलोमीटर के क्षेत्र में केवल आदिवासी रहते हैं, तो मुझे लगता है कि उन्हें थोड़ी सी बचत करके टिकट खरीदना चाहिए, अंडमान निकोबार जाना चाहिए। वहाँ जो 700 से ज़्यादा द्वीप हैं उनको देखना चाहिए। वहाँ आदिवासी कुछ जातियाँ हैं और कुछ इलाके हैं जहाँ वो रहते हैं, और सौभाग्य से भारत सरकार ने शुरू से ही वो नीति रखी कि उन इलाकों को प्रोटेक्टेड रखा जाए। तो वो इलाके कहीं छेड़े नहीं जाएंगे इंडस्ट्री के लिए, अभी तक छेड़े भी नहीं गए। नेवल बेस बने हैं वहाँ पर, और बहुत सारी सुविधाएं बनी हैं, लेकिन भारत सरकार ने उनको नहीं छेड़ा और आगे भी नहीं छेड़ेगी, क्योंकि उनके जो आर्थिक हित हैं उनको साधने में ये सुविधाएं कहीं उनको लाभ ही देंगी। वहाँ जो लोग जाकर बसे हैं, अगर आप उनको देखें ध्यान से, तो ज़्यादातर वो लोग हैं जो बांग्लादेश से भागकर, वो युद्ध जब हुआ था 1971 का, तो अलग अलग क्षेत्रों में गए थे वहाँ के लोग। वो बहुत सारे लोग वहाँ के हैं, मुख्य भूमि से गए हुए लोग हैं। तो वहाँ की जनसंख्या जो है वो मिश्रित है, और जो ट्राइबल एरियाज हैं वो बहुत गिने चुने थोड़े से हैं। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि अभी जो ही पता लगेगा कि अंडमान निकोबार को भारत विकसित करना चाहता है, तो चीन सरकार की एक खासियत है, वो हर देश को गहराई से स्टडी करती है कि इसको बिना गोली चलाए अंदर से कैसे कब्जा कर लिया जाए। वो आइडेंटिफाई करती है उन सब इश्यूज को जो उस देश में विभाजन के कारण है, विवाद के कारण है। वो आइडेंटिफाई करती है उन संस्थाओं को जो उस देश के हितों से नहीं मेल खाते। वो आइडेंटिफाई करती है उन बुद्धिजीवियों को जिनकी शान है अब कुछ कह देने में। सिर्फ कल वॉशिंगटन पोस्ट ने जारी की खबर कि लोग अपने पाठकों को कह रहा है कि वोट मत दीजिए इसको, ट्रंप को, बाइडेन को दीजिए। इससे ज्यादा शर्मनाक कोई बात हो सकती है किसी एक डेमोक्रेसी में कि वहां का एक सम्मानित अखबार जो है वो पर्चेबाजी पर उतर आए पार्टियों के लिए। और वो इसलिए हो रहा है कि वो भले वॉशिंगटन पोस्ट हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, वॉल स्ट्रीट जर्नल हो, मैं नाम ले रहा हूं इनके, CNN हो, रिकॉर्ड दिखा रहे हैं कि चीन से उनको पैसा मिलता है, बड़े बड़े विज्ञापन मिलते हैं, और उसकी वजह से उनके एडिटर जो है ऐश आराम करते हैं। और आज चीन जो है ये चीन की भाषा बोल रहे हैं, क्योंकि चीन को ट्रंप पसंद नहीं है। ऐसे दोस्त यहाँ भारत में बहुत मिलेंगे। NGO, आप वेट करिए, वो खड़े हो जाएंगे, उन्हें अचानक आदिवासी याद आ जाएंगे वहाँ के, बिना समझे हुए कि आदिवासी ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हैं, ऑलरेडी उनके एरियाज डिफाइंड हैं। उनके बाद जो बाकी बचा हुआ एरिया 90% से भी ज्यादा है जो आदिवासी नहीं है। वहाँ इतने टापू हैं कि जहाँ पर अलग अलग तरह का आप टूरिज्म डेवलप कर सकते हैं। वाटर स्पोर्ट्स के लिए ऐसे इलाके जो कहीं इंटरफियर नहीं करेंगे आदिवासियों के साथ, इंटरफियर नहीं करेंगे जो नेवल बेस की सुरक्षा के साथ, लेकिन वहाँ वाटर स्पोर्ट्स कर सकते हैं। जो इकोनॉमी है, कंपनियां हैं हांगकांग से आने वाली या दुनिया की दूसरे देशों की कंपनियां, जो शिपिंग हब वहाँ बनेंगे, उसके लिए इतनी जगह है कि वहाँ क्या जो ट्राइबल है उसका सम्मान, उसकी आइडेंटिटी को बिना छेड़े हुए किया जा सकता है। ये सवाल बिल्कुल सही है कि हमें, क्योंकि हम जीरो से शुरू कर रहे हैं, तो वहाँ के पर्यावरण को नुकसान नहीं हो, ये जिम्मेदारी हमारी है।
ये सरकार को भी ध्यान रखना होगा, प्लानर्स को भी ध्यान रखना होगा, नीति निर्धारकों को भी ध्यान रखना होगा, और ये एक चुनौती है जिसको हमें ध्यान में रखना होगा। थैंक यू वेरी मच सर। सर उसी से जुड़ा एक और क्वेश्चन है, आप चीन के ऊपर आपने बहुत ज़्यादा स्टडी भी किया है और आप एक्सपर्ट भी हो चीन के मामलों में। तो सर चीन इतना एग्रेसिव है कि जो वो दूसरी कंट्री में जाके भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता है और उस कंट्री के पार्ट को वो मतलब उनको एक्सप्लॉइट करता है। तो इंडिया की जो स्ट्रेटेजी है वो अपने लोगों के लिए या तो सिर्फ इंडिया में ही वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर रहा है या तो बहुत कम, जैसे अभी हमने अंडमान निकोबार में देखा कि अभी वहां पे जीरो है, अभी शुरुआत हुई है कि वहां पे ऑप्टिकल फाइबर्स या इस तरीके से जोड़ दिया जाए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामलों में इंडिया कब इतना इम्प्रूव हो पाएगा? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में आपने बिल्कुल सही कहा, जिन्होंने भी ये सवाल पूछा है बड़ा वाजिब सवाल पूछा है कि इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बहुत ही जिसको कहें सोता हुआ देश रहा है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। 1992 में जब तिब्बत का जो ये लिपुलेख इलाका है, वहाँ वो जो भारत तिब्बत और नेपाल की जो ट्राई जंक्शन है वो लिपुलेख है, वो पॉइंट, वहाँ पर 30 साल के बाद सीमा व्यापार शुरू हुआ। 1962 में चीन ने हमला किया तो भारत का जितना पहाड़ी इलाके जहाँ व्यापार होता था सीमा पार से, भले बार्टर ट्रेड होता हो या छोटे छोटे ट्रेड होते हो, वो अचानक बंद हो गए। तो भारत के बहुत सारे गांव वहाँ इसलिए उजड़ गए कि वो गतिविधि खत्म हो गई। तो 1992 में वो फिर से शुरू किया गया, चीन सरकार ने भारत के साथ शुरू किया। तो मैं इंडिया टुडे में था, तो इंडिया टुडे ने मुझे वहाँ भेजा। अब मैं जब धारचूला पहुंचा तो वहां मुझे बताया, मतलब उससे पहले दिल्ली में ही बता दिया गया था कि मेरे बाकी रिपोर्टर दोस्त इसलिए नहीं वहां जाना चाहते कि एक दिन पैदल चलना पड़ेगा सीमा के लिए, सीमा तक पहुंचने के लिए। तो मैंने कहा मैं तो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो बोले फिर आप जाइए। अब इमेजिन करिए, मैं धारचूला पहुंचा तो वहां से एक छोटी सी इलाका है ठाणीदार, वहां तक तो कच्ची सड़क है। उसके बाद मुझे 8 दिन वन साइड पर लगे पैदल चल के वहां पहुंचने में, 8 दिन गुंजी तक पहुंचने में लग गए। और मैं जब चल रहा था तो मेरे साथ साथ हिंदुस्तानी फौजी भी चल रहे थे, उनके खच्चर चल रहे थे, खच्चरों पे सामान रसद लदी हुई थी, फौजी अपने कंधों पर भी लिए हुए थे। तो मैंने 1-2 बार उनसे रुक के पूछा कि भाई साहब आप इतना पैदल इतना चलते हैं तो आपने सड़क क्यों नहीं बनाई? तो हंसते रहे, वो हर बार मजाक करते थे। तो मैं जब वापस आया तो धारचूला में ITBP ने मुझे डिनर पर बुलाया, बहुत अच्छे होस्ट हैं वो। तो मैंने ऑफिसर से पूछा कि आप इतनी तकलीफ उठाते हो तो सड़क क्यों नहीं बनाई है सीमा तक? तो बोले सर सरकार की नीति है कि अगर हमने सड़क बना दी तो चीनी सेना उस सड़क से भारत में घुस आएगी। ये नजरिया जिस देश का हो, नीति निर्धारकों का, उनके दिमाग के दिवालियापन पर हंसा जाए या रोया जाए। इस देश में 60 साल तक सीमा की सड़कें नहीं बनाई गई, जानबूझकर नहीं बनाई गई कि चीनी इससे अंदर आ जाएंगे। और चीन ने, आप शुरू कीजिए, मतलब जो लास्ट पॉइंट है भारत का लद्दाख में, वहां से लेकर अरुणाचल तक 4000 किलोमीटर लंबी पूरी सीमा के साथ साथ चीन की पक्की सड़कें हैं। हर चौकी सिर्फ उस सड़क से नहीं जुड़ी हुई है, वो लासा की ओर जाने वाली, बीजिंग की ओर जाने वाली सड़कों से, शानदार सड़कों से जुड़ी हुई है। अब मुकाबला कर रहे हैं उस देश का ना सड़क बनाकर। मोदी जी ने अभी पिछले कुछ साल में ये इस नीति को तोड़ा है। जो मैंने सही अगर पढ़ा है तो 76 रोड्स इस वक्त लगभग बनकर तैयार हो चुकी हैं पिछले 4 साल में, कि जो भारत की, मोदी जी की ये घोषित नीति है कि मैं अपने हर जवान, हर सीमा चौकी पर बैठे जवान को पक्की सड़क से जोड़ूंगा, जिससे वो आराम से वहां रह भी सके, सुरक्षित रहे, उसको गोला बारूद समय पर मिले और सुरक्षा सुविधाएं मिलें, कपड़े मिलें, सब कुछ पहुंचे। तो ये 60 साल बाद शुरू हुआ है सर। आज हम कंस्ट्रक्शन के मामले में ये नीति है। चीन ने हम्बनटोटा बनाया और इतना महंगा बनाया, नाचते रहे श्रीलंका वाले कि चीन हमारा इतना अच्छा दोस्त है, देखिए कितना बड़ा हमारे लिए बना दिया, भारत ने मना कर दिया। आज नतीजा क्या हुआ? वो इतने पैसा जो बनाया चीन ने, अचानक उसका बिल भी रख दिया उसके सामने, श्रीलंका सरकार के साथ।
श्रीलंका के पास वो पैसे ही नहीं है देने को, तो श्रीलंका ने गिरवी रख दिया है 99 साल के लिए गिरवी रख दिया हम्बनटोटा। कैन यू बिलीव इट? आपकी छाती पर हम्बनटोटा 99 साल के लिए आ गया। पाकिस्तान का सीपैक है, उस पर चीन ने $60 अरब खर्च किया। पाकिस्तानी ढोल बजाकर डांस करते रहे कि हिंदुस्तान को अब हम देख लेंगे, अब हमारा दोस्त चीन है, देखिए हमारी कितनी मदद कर रहा है। और आज अचानक चीन पाकिस्तान में पाकिस्तानी संसद में चीन की हाय हाय हो रही है खुलकर, क्योंकि चीन ने इन सब चीज़ों को एक तरह से गिरवी रख लिया है, इन चीज़ों को अपने कब्जे में ले लिया है। और वहाँ के जो सरकार को अचानक पता लग रहा है कि ये हमारे देश में है, ये सड़क हमारी नहीं है, ये नौसैनिक अड्डा बंदरगाह हमारे देश में है, हमारा नहीं है। तो चीन की वो नीति रही है। पूरा अफ्रीका में चले जाइए, केन्या से लेकर और जितने भी देश थे बहुत खुश थे कि चीन हमारी कितनी मदद कर रहा है। अब उन देशों में चीनी वस्तुओं का बहिष्कार हो रहा है क्योंकि उन्हें घृणा हो गई है चीन से कि उसने हमारी अर्थव्यवस्था पर कब्जा कर लिया है। भारत जहां भी जाता है वहां उसकी सीधी नीति होती है कि जो हम बना रहे हैं वो आपका है, इसका जो हम अगर आपसे कुछ अपनी जेब से जो देंगे वो हमने दे दिया। आप अगर कुछ उधार लेके कर रहे हैं तो उसका ब्याज जो है दुनिया में उससे कम ब्याज कहीं नहीं। तो भारत की नीति धीरे धीरे काम कर रही है और भारत अब अपने देश में भी सुधार कर रहा है। आप देखिए सड़कें, मैं गुजरात में जितनी बार जाता हूं तो बहुत खुशी होती है कि ये हुआ ना नमूना प्रगति का, विकास का, इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो भारत में हो रहा है, अब देखते हैं आगे भी होगा। थैंक यू वेरी मच सर। सर एक और क्वेश्चन था, जो ग्वादर पोर्ट को टक्कर देने के लिए चाबहार पोर्ट इंडिया बनाने जा रहा था, लेकिन अभी अचानक खबर आई कि इंडिया ने हाथ पीछे खींच लिए, या तो फिर अब ईरान खुद वो बनाएगा। तो वो चाबहार का क्यों प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया? क्या उससे कुछ मतलब स्ट्रेटेजिकली? ये इसमें सवाल सही है, लेकिन मूलभूत जो इसमें जानकारी जितनी है वो सही नहीं है। सवाल सही है कि नेपाल में चाबहार पोर्ट है, वो भारत और ईरान में चाबहार पोर्ट है, बंदरगाह। उसके विकास के लिए भारत और ईरान ने हाथ मिलाए थे, लेकिन अब जो है उसमें चीन घुस आया है। उसके पीछे स्टोरी है। कारण क्या है कि अमेरिका और ईरान की दुश्मनी बड़ी मजबूत है। अमेरिका ने ईरान पर सैंक्शंस लगा दिए हैं, बल्कि ये कर दिया कि जो कंपनी ईरान के साथ व्यापार करेगी वो अमेरिका के सारे व्यापारों से मुक्त हो जाएगी। हम नहीं देंगे उसको, उस देश को हम रक्षा सहयोग नहीं देंगे, वो हमारी कंपनियां उसका बहिष्कार करेंगी। तो ये संकट अचानक भारत के लिए खड़ा हो गया कि जहां उसकी तरफ दोनों तरफ दो दोस्त देश थे। ईरान भारत की बहुत अच्छी दोस्ती है, बहुत अच्छी। पाकिस्तान से ईरान बहुत दुखी है, इंडिया भी दुखी है, इसलिए दोनों की दोस्ती है। भारत जितनी ये अफगानिस्तान तक जो खाने की सामग्री, विकास की सामग्री पहुंचाना चाहता है, बहुत छोटा रास्ता है पाकिस्तान के थ्रू, पाकिस्तान रास्ता नहीं देता है। तो भारत को वो पहले ईरान भेजता है खाड़ी में, फिर शिप से जाता है, फिर वहाँ से वायु मार्ग से या सड़क के रास्ते से दूर अफगानिस्तान के इलाके में जाता है। तो भारत ने इसलिए चाबहार के डेवलपमेंट में मदद दी और वहाँ भारत को उसके अधिकार भी कुछ मिलने वाले थे। खत्म नहीं हुआ ये समझौता, लेकिन अभी डामाडोल हो गया है चीन के घुस आने से और अमेरिका के साथ ईरान के झगड़े से। चाबहार से सड़क और रेलगाड़ी भारत जो है बनाने जा रहा था अफगानिस्तान तक और सेंट्रल एशिया तक, वो खटाई में पड़ गया है इस विवाद की वजह से। लेकिन ईरान के साथ भारत के संबंध आज भी बहुत अच्छे हैं और सौभाग्य से अमेरिका को समझ में आ रहा है कि भारत ईरान के जो रिश्ते हैं अगर वो बने रहेंगे तो अमेरिका के लिए गुंजाइश दुश्मनी में भी अच्छा रास्ता किसी दिन करने की बनी रहेगी। और इसलिए खत्म नहीं हुआ वहाँ सब कुछ, लेकिन चीन ने वहाँ अपना जो खुराफात करनी थी वो बड़ी मजबूती से कर रहा है, इसलिए वो थोड़ा डामाडोल हो रहा है। थैंक यू वेरी मच सर। मेहुल सर। हाँ जी, क्वेश्चन। थैंक यू चिराग सर फॉर अ क्वेश्चनिंग सेशन। मैंने सभी प्लेटफॉर्म पर
क्वेश्चनिंग देख लिए हैं, पार्टिसिपेंट के रिप्लाई बहुत आए हैं सर, क्वेश्चन कोई नहीं है। तो आई थिंक इवन इन स्कूल मेथड जो भूगोल हम पढ़ते हैं वो पढ़ाने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि हम मैप से सिखाएं उनको। जैसे आपने सर पूरा सेशन में थियरिकल पार्ट बहुत कम था, जो एक्सप्लेनेशन था वो मैपिंग सेशन से बहुत ज्यादा था, तो वो एक बेस्ट मेथड है भूगोल पढ़ाने के लिए कि हम आई थिंक इसी वजह से क्वेश्चन नहीं दिख रहे हैं मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। सर आपकी तरफ से बीएल वोरा सर और आयुषी कितकर मैडम भी जुड़े हैं, सो आई रिक्वेस्ट यू टू इंट्रोड्यूस इन 2 or 3 मिनट कि हम भी जान सके ये लोग कौन है सर। या मैं आपका परिचय कराता हूँ। बीएल वोहरा जी, बीएल वोहरा जी रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं और भारत के उन गिने चुने पुलिस ऑफिसर्स में से हैं कि जो न सिर्फ अपने काम में बहुत सक्सेसफुल रहे हैं अपनी हर असाइनमेंट पे, लेकिन उसके साथ साथ वो बहुत अच्छे लेखक भी हैं, विचारक भी हैं। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं जो अपराध से रिलेटेड हैं और अपराधी की मानसिकता क्या है, समाज में उसका जो वातावरण है वो उस पर क्या असर डालता है और पुलिस व्यवस्था कैसे काम करती है या उसको कैसे करना चाहिए, इन सब सवालों को उन्होंने बड़े रोचक ढंग से अपनी किताबों में लिखा है। मानवाधिकारों पर उनकी एक किताब है। मेरा सौभाग्य रहा कि जब उसका लॉन्च हुआ था तो उस मास्टर ऑफ सेरेमनी मैं था इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में। उनकी एक और किताब का भी मैं लॉन्च में मेरी यही भूमिका थी। और वोरा जी जो डिस्कशंस होती हैं टीवी में अलग अलग विषयों को लेकर, सुरक्षा के मामलों में लेकर, इंटरनल सिक्योरिटी पर, तो जो बहुत अच्छे एक्सपर्ट भारत के हैं उनमें हैं बीएल वोरा जी। और आयुषी केतकर जी जो हैं ये इंटरनेशनल अफेयर्स की प्रोफेसर हैं। पहले पुणे में एक्टिव थी, वहाँ पढ़ाती थी, फिर दिल्ली आ गई। दिल्ली में जो अलग अलग एक यूनिवर्सिटी का मुझे नाम याद नहीं आ रहा, नोएडा में है, तो वहाँ वो प्रोफेसर रही हैं। आजकल जीएनयू में प्रोफेसर हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की। और जम्मू कश्मीर की स्थिति के बारे में वो बहुत अच्छा जानती हैं, बहुत विस्तार से कई डिस्कशंस में भी हिस्सा लेती हैं। और चाइना को लेकर भारत के जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उन पर उनकी समझ बहुत अच्छी है। और मैं दोनों को धन्यवाद कहता हूं कि उन्होंने समय निकाल कर इसमें भाग लिया। थैंक यू सर। विजय सर, टू इंट्रोड्यूस टुडे आपके साथ जो भी थे वोरा सर एंड आयुषी मैडम को इंट्रोड्यूस करने के लिए। नाउ आई एम रिक्वेस्टिंग डॉक्टर सेजल देसाई मैडम, जो हमारे IQAC सेल को लीड करते हैं और कॉलेज में जो नेक एक्रेडिटेशन होता है, लास्ट टाइम हमारा एक्रेडिटेशन हो चुका है सर 2.94, जिनकी निगरानी में हमने कॉलेज ने गेन किया है in the under the able leadership of Principal Chavda sir and Dr. Sejal Desai madam and overall staff. So I'm requesting Dr. Sejal Desai madam to propose vote of thanks. Namaskar. On behalf of Amroli College Parivar, I, Dr. Sejal Desai, express my paramount gratitude to respected Vijay Kranti sir for chairing the session at the webinar and sharing your deep knowledge and experience in this webinar. Once again, thank you very much, sir, for sparing your valuable time from your busy schedule. We are extremely thankful to our Jeevan Jyot Trust President, respected Sri Bharat Bhai Shah sir, and all respected trustees for providing us continuous support for the development of the college. We are thankful to our respected principal, Dr. Chavda sir. He is a very visionary and great motivator and always guiding all of us in a right direction. Thank you very much, sir. Big thank you to our webinar team, technical team, college, all the members of College Parivar for your never-ending support. And last but not least, special thanks to all the participants for your virtual presence and inspiration. Thank you very much.